Hello everyone, today we are here to learn about a new topic, linear inequalities. Inequalities word से आपको क्या कंसेप्ट समझ में आता है? आपने पढ़ा हुआ है पहले से वर्ड्स इक्वेशंस. इक्वेशंस क्या होती हैं? जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है. टू साइड्स आर इक्वल. जब इक्वल टर्म्स होते हैं तब उन्हें हम इक्वेशंस बोलते हैं. एंड व्हेनेवर इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएंगी? जब एग्जैक्टली इक्वल ना हो, उनके साथ ग्रेटर और लेसर का कंसेप्ट भी आ जाए. ओके, इफ आई एम सेइंग x belongs to n, that is natural numbers, and 2x plus 2x minus 4 is equal to 0 is given to you, तब x की वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ x इज 2. एग्जैक्टली एक वैल्यू आएगी जब यहाँ इक्वल का साइन है. एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन. किस टाइप का आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यूज मिलेंगी. बट वहीं आप इस क्वेश्चन को ऐसे ले लें, 2x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0. दैट मीन्स बाकी सब कैलकुलेशन पैटर्न सब सेम रहेगा. यू विल बी गेटिंग 2x ग्रेटर दैन 4 और x ग्रेटर दैन 2, isn't it? तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 है. ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर दैन 2 विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन. ओके, इन केस यहाँ इक्वल का साइन लग जाए तो क्या होगा? इंक्लूडिंग 2, all other numbers which are greater than 2 will be the solution of this condition. तो जहाँ पे आपका equal के अलावा you can get equal or lesser, greater or less than equal to, with equal some greater or lesser concept should be there. तो उस टाइप के expressions को बोलते हैं inequalities. So write its definition. Inequalities. Inequalities are the expressions or the numbers or algebraic expressions that can be expressed by greater than, less than, greater than or equal to, or less than or equal to, are called inequalities. Okay, so this was a formal definition of it. Now let's write the examples. किस टाइप की चीज़ें? यहाँ पे क्या कहा गया है? Algebraic expressions or numbers. The numbers or algebraic expressions. Okay. So if I have taken 1 less than 5, is it correct? Yes, as it is giving the same, the condition which is required here, 5 से 1 छोटा है, तो we have shown 1 less than 5, isn't it? So this type of inequalities are called numerical inequalities. Numerical inequalities. Similarly, ज़रूरी नहीं हमेशा नंबर के टर्म्स में आए. जब आप इक्वेशंस पढ़ते हैं, algebraic expressions की बात करी जाती है, तो you can get in terms of variables as well. तो जब आपको इस तरह से एक टर्म मिल जाए, x is greater than 5 with the particular condition, x कुछ भी हो सकता है, तो the condition which is satisfying this inequality, the values of x which are satisfying this inequalities, so this type of condition is called literal inequality. Literal inequality. ओके, और कभी कभी आपको एक्सप्रेशन इस तरह से भी मिलते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5. इस टाइप की कोई वैल्यू मिल जाए, सो दिस इज कॉल्ड डबल inequality. Okay, so these type of names we can give for the inequalities.
Now some more conditions are there that we can write are, if I have a case, except these three, if I have a case that x is less than 1 or x is greater than 2, this type of conditions are there where x is strictly less than 1 is given to you, and it is not equal to 1 is there. So this type of conditions, inequalities are called strict, where इक्वालिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जो नंबर दिया हुआ है उससे लेसर और ग्रेटर वैल्यूज़ ही हमें मिलेगी. दीज आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़. एंड जब हमारे पास में इक्वल का भी साइन आ जाता है, वेदर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज स्लेक इनइक्वालिटी इट इज कॉल्ड. ओके, सो इन दिस मैनर you are having the particular names for the particular things. This topic, the linear inequalities, we will be learning in CBSE class 11th, and we will learn about the linear inequalities this time. Okay, the name of the chapter is linear inequalities. So you are very much aware of linear equations, no? अभी अपने छोटी क्लासेस में काफ़ी इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है. यू हैव लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है? द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, कॉन्स्टेंट्स हैं ये. एंड इस तरह से x की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि इक्वल का साइन है तो वी आर गेटिंग द फिक्स्ड कंडीशन. सो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होगा? लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल कैन बी गिवन बाय ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन 0. इस तरह का टर्म आपको दे दिया. और यू कैन गेट इंस्टेड ऑफ 0 यू कैन गेट c ऑल्सो, एनी अदर कॉन्स्टेंट ऑल्सो यू कैन गेट. बस linear means we should have linear inequality means in 1 variables means we should have 1 variable only and its degree is obviously 1. Similarly आगे आपको पढ़ना है इसी में 2 variables में. In 2 variables how can we express it? आपको मालूम है कि ax plus by इज इक्वल टू सी आ जाता है यहाँ पे जब आप लीनियर इक्वेशंस लेते हैं. सो लीनियर इनइक्वालिटी में इट कैन बी ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन अ कांस्टेंट. द कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी 0 ऑल्सो. बस रिमाइंड दिस कि इट शुड कंटेन 2 वेरिएबल्स, x and y, 2 वेरिएबल्स विद डिग्री 1. ओके, so today we will be learning about how to solve the different type of linear inequalities. बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत इजी है, काफ़ी बहुत जल्दी भी ये सॉल्व हो जाता है. और 12th में भी इसी से रिलेटेड टर्म्स हमें पढ़ना है. शुरुआत हम करेंगे linear inequalities in 1 variable, different patterns of solving different type of linear inequalities. Okay, let's start it. The first pattern of solving linear inequalities is to solve linear inequalities in 1 variable of the form ax plus b is greater than cx plus d, और ax plus b less than, जब आप इसको कंबाइन करेंगे एक तरफ लेके आके सॉल्व कर देंगे, ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग अ लीनियर कंडीशन. हाँ, बस a and c shouldn't be 0. ओके,
Now ax plus b less than cx plus d, or that can hold greater than or equal to sign, less than or equal to sign also. इस टाइप की सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं. So let's start with the first question, a very simple. But before starting these type of questions, we must be aware of a very important concept. Remind this, children. Before starting the linear inequalities, we must be aware of what? A condition particularly, just see this thing, a particular definition also. If you have taken an equation 2x plus 1 greater than 0, or greater than, we can take it as 5, okay, but with some condition. First case ki x should belong to the natural number, second case x belongs to integers, and the third case I am taking that x belongs to the real numbers. ओके जब इन तीनों कंडीशन में हमने ये इक्वेशंस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, देखिए कैसे करें. फॉर द फर्स्ट केस हम इसे सॉल्व ऐसे ही करेंगे, सिंपली जैसे सॉल्व करते आए हैं. वी विल बी सॉल्विंग इट as 2x plus 1, 2x is greater than 5 minus 1. We have subtracted 1 from both the sides. Then we have got 2x is greater than 4. Again we divided 2. In both the sides we have got x greater than 2. ठीक है. Let's go for the first case. When x belongs to 2. ठीक है. When x is belonging to, what will be the values of x? x की values क्या आएंगी? तो x की वैल्यू आपको मालूम है. When x belongs to the natural number, sorry, x अगर नेचुरल नंबर है तो इस कंडीशन को लेते हुए x की वैल्यूज क्या आएंगी बताइए जरा. I'll be getting the answer as x is equal to 3, 4, all the values which are, all the natural numbers which are greater than 3, 4, 5 and so on, isn't it? Or I can write x belongs to, you have learned this thing in sets, x belongs to 3, 4, 5, in curly bracket we can express the terms, which is an infinite set. When we'll talk about the integers, the same condition I am getting because the term is already greater than 2. तो आपको अगर कोई एक वैल्यू x minus 2 से ग्रेटर, तो वी आर गेटिंग द अगेन द सेम वैल्यू व्हेन x बिलोंग्स टू z है. हमारे पास x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, अगेन 3, 4, 5 and so on. But in case we will take x belongs to r, real numbers ले रहे हैं बेटा. And remind this, ये भी आपको अगर आपको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है, this year we will learn about the number line representation of linear inequalities as well. तो अगर आप इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो what shall you get? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से आपकी नंबर लाइन आराम से बन जाएगी. आप जैसे बताते हैं 0, 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सारे टर्म्स आप शो कर पाएँ और उसे हाईलाइट कर दें. Now if x is belonging to r, तो x greater than 2 को हम कैसे एक्सप्रेस करें? जब आपके पास प्रॉपर नंबर्स दिखते थे, नेचुरल नंबर में 2 से बड़ा आपका 3 होता है, n से बड़ा 4 एंड सो ऑन, हर एक नंबर हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसे सेट में हम इस तरह से शो कर सकते हैं, isn't it? पर अगर रियल नंबर्स है तो उस समय एक कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको इसको एक पर्टिकुलर करली ब्रैकेट में आप शो नहीं कर सकते. अगर आप बोलें कि 2 से बिगर क्वांटिटी इज द रियल नंबर, वी कांट डायरेक्टली राइट इट एज 3. x की वैल्यू डायरेक्टली हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से बड़ा रियल नंबर तो 2.000001, 2.123 फॉर एनी नंबर, 2.00001 भी बोलो तो उससे भी छोटी और बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं. 2 नहीं होना चाहिए, बस 2 से बड़ा होना चाहिए. तो इस
नॉट पॉसिबल फॉर अस। अगर मैं नंबर लाइन पे शो करूँ तो 2 and 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। इफ आई एम हैविंग 2 and 3 देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन। सो इस तरह से मुझे इसको रिप्रेजेंट करना कैसे है उसका भी एक तरीका होता है। सो वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू whenever x belongs to a real number is given to you, x is a real number and we have to find the values of inequality or where to solve the inequalities, a particular value helps a particular term we used to write as intervals. So an interval is subset of a set, we can say कोई भी इंटरवल में ले रही हूँ इट विल बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इट कैन बी द कोई सबसेट, कोई भी सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है, तो इट कैन बी अ रियल नंबर ऑल्सो। सो इंटरवल क्या होते हैं? इन केस देखिए अगर आपने x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है और आपके पास पहली वैल्यू आ रही है कि कोई भी एक नंबर है a, द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग इन बिटवीन। बिटवीन का वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आपने लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटीज में भी बहुत किया था ये। सो इन बिटवीन a एंड b, दैट मीन्स a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो इस टाइप को किस इंटरवल में शो करते हैं? देखिए ज़रा, जब ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन आता है तो एक सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर वी यूज्ड टू टेक, वी रिप्रेजेंट इट इन स्मॉल ब्रैकेट टाइप्स। वी विल बी टेकिंग a, b, okay, in the bracket, and it is x is belonging to this interval, that means जब भी इसको बोलते हैं open interval। What is an open interval? जब x की वैल्यू जो उसके लिमिट्स को इंक्लूड नहीं करती, इन बिटवीन दैट लिमिट्स होती है, तब हम इस तरह से ब्रैकेट में से शो करते हैं। और वी कैन कहीं कहीं आप इसको इस तरह से भी देखेंगे कि x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल इज लाइक दैट, इज a, b, पर जनरली हम लोग स्मॉल ब्रैकेट वाले टर्म्स ही यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज, अगर आपके पास इसको अगर आप नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है तो हाउ टू डू इट? यू आर अवेयर ऑफ लाइन इज एंडलेस, बट यहाँ पे आपके पास कुछ कंडीशन है कि x इज बिलोंगिंग इन बिटवीन a एंड b, तो हम कहीं एक पॉइंट a शो करेंगे एंड इट शुड बी इन ओपन सर्कल दिखाएंगे वहाँ पे, क्योंकि a इज नॉट इंक्लूडेड। एंड सिमिलरली b को भी ओपन सर्कल में रख के b इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड एंड x इज लाइंग इन बिटवीन दैम लिखा हुआ है ना। सो वी विल बी राइटिंग इट एज, यहाँ पे हम इसे हाईलाइट कर देंगे, दिस पोर्शन वी विल बी हाईलाइटिंग कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही आ रही है, दिस इज x। ओके, दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में क्वेश्चंस में करना है। नाउ दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में फिर से सुन लीजिए कि a एंड b नॉट इंक्लूडेड होते हैं, तो वहाँ पे आपको सिंपल हॉलो सर्कल्स रखने हैं, ओनली सर्कल्स यू विल बी ड्रॉइंग, एंड द area in between is the solution portion. Now second point, जरूरी नहीं कि हर बार आपका open interval ही मिले। In case you are having a is less than equal to x is less than equal to b, इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। That means x की वैल्यू a and b के बीच में तो है, but it is including a and b also। ठीक है, so वी विल बी राइटिंग द वर्ड, यहाँ पे इसके लिए इस टाइप की टर्म्स जब आप जिस पार्ट में होते हैं रियल नंबर के, जिस सबसेट में होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल कैसे होता है? x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड, मतलब वी आर हैविंग अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड वी विल बी राइटिंग इट एज a, b, ओके। सो दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज्ड। अब देखिए क्लोज्ड है और ये ओपन हो गया। सो जनरली यू विल बी प्रेफरिंग दिस वैल्यू, हम ये वैल्यू इस नोटिफिकेशन को लेके चलेंगे, दिस सिंबल वी विल बी यूजिंग। दिस इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? हमने a शो किया कोई पॉइंट, b शो किया, सिंस a and b both are included we will be making dark circle
ओवर देयर कि ये इंक्लूडेड है, यहाँ खाली नहीं है, इस चीज़ को भी लेके चलना है. सो वी विल राइट अगेन द कंडीशन एज, यहाँ पे आपके पास टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज, यू आर राइटिंग दिस इज द पोर्शन विच इज शोइंग एक्स. नंबर लाइन पे इस तरह से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हम इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे उसे. अब इसी तरह से दो और केस आ जाते हैं आपके पास में. थर्ड वन इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल. ये किस तरह से होता है, ओपन का मतलब आपके पास लेस देन होगा और ग्रेटर देन हो सकता है. दिस सिंबल विदाउट इक्वल साइन, पहला ओपन लिखा है, पोजीशन मैटर्स हियर, तो a is less than equal to x is less than equal to b because closed is mentioned over there. And this time x belongs to open a and closed b. And the number line representation is, again कैसे लेके चलेंगे हम यहाँ पे बताइए ज़रा. We will be getting the number line representation as open a, hollow circle, and dark one b, and the value of x lying in between. The next expression like that is closed open intervals. कैसे होते हैं वो, अब फिर नाम से अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा. Closed means a is less than or equal to x is less than b. So this will give you closed open intervals. And here x is belonging to closed a and open b. Okay. Now the number line representation is a पे closed है तो dark circle will be there, and b is having hollow. This is b, and the term in between is, the portion in between is showing the solutions. So ये 4 points आपको, the 4 points which are given to you, you have to take care of these points. इनको समझ के रखिए, because in majority of the questions we will be going for real numbers only. Okay, now we are solving these conditions. यहाँ पे आपके पास x belongs to r है, ठीक है. For every x belongs to r you are using this condition. Let's start the questions. आप इन 4 points को आपके दिमाग में रखिएगा, याद रखिए उनको, and let us start with it. The first question I'm starting is, पहले क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं जिसमें तीनों केसेस हैं. अब आप बता पाएंगे मुझे आंसर्स किस फॉर्म में आना है. Let us go for the first question. Solve is already given to you. The first linear inequality I am taking as 3x minus 2 is less than minus 4, or I can take it as minus 8. Okay, let us take this value. अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो here minus 2 is there, तो we will be adding 2 on both the sides. इतना लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं, directly you can solve the value. दिमाग में वो concept याद रखिएगा. We are having 3x, on adding 2 on both the sides we will be getting 3x is less than minus 6. ओके, यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं आपके पास. इस केस में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम कंडीशंस लेके चल रहे हैं, उसके बाद सारे के लिए हम x बिलोंग्स टू r लेके चलेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो एक बार रिकॉल हो जाए. लेट्स गो फॉर इट. व्हेन x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू z, और इंटीजर्स को आप i ले लें, z ले लें, एंड बोथ आर द नोटिफिकेशन फॉर इंटीजर्स. i होता है तो भी इंटीजर्स हैं, z इज ऑल्सो इंटीजर. नाउ x बिलोंग्स टू r, ये तीनों केसेस के लिए हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. So here 3x is less than minus 6 is given to you. We will be taking
x, अब मैंने 3 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिला -2. ओके, सो x इज लेस देन -2. Do you know any set, any natural number which is less than -2? For the first case, when x belongs to n, this is not giving any solution. This condition is not giving any solution. So we will write no solution. Okay, क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन 2 नहीं होता, लेस देन -2 नहीं होता. All should be positive. For x belongs to z, that is integers, क्या मिल रही है? x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? x की वैल्यू हो सकती है -2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज आएंगी. आई विल बी टेकिंग -1, फिर 0, फिर -1, we will be getting -3, -4, -5 and so on. ये किस डायरेक्शन में जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में, -∞ की तरफ मूव करेगा ये. सो इस तरह का सेट हम शो कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, एक करली ब्रैकेट में क्योंकि इंडिविजुअल टर्म्स हमें दिख रहे हैं, वी कैन स्टार्ट विद इन्फिनिटी, -5, -4, -3 एंड सो ऑन अप टू -∞. इट विल बी मूविंग. पर आपको मालूम है कि जब सेट में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो पोजिशन डजेंट मैटर, तो जनरली हम इसी तरह से इसी ऑर्डर में दिखा देंगे. द नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने पढ़ना है हर जगह, x belongs to r is there. So here we will take the condition x is less than -2. ओके बेटा, इन प्रीवियस जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे कि x किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे तो एक ही टर्म दिख रहा है आपको. सो कैसे करेंगे उसको? लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन फर्स्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से उस चीज़ के बारे में. आपको मिल रहा है x इज लेस देन -2, तो नंबर लाइन पे हमने अगर प्लॉट किया तो यहाँ पे जैसे आप छोटी क्लासेस में कोई भी टर्म्स प्रूव करते थे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे, आपको 0, 1, 2, 3 सब कुछ लिखना होता था. बट इस बार ऐसा नहीं करना. यू आर इन हायर क्लास नाउ. जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उन्हीं को पुट करिए, जो वैल्यूज दिख रही हैं. सो आई विल बी राइटिंग -2 ओवर देयर. कहीं कोई -2 है मेरे पास जो मुझे नंबर दिख रहा है. एंड सिंस इट इज कंटेनिंग लेस देन साइन, ना, फॉर लेस देन साइन वी विल बी राइटिंग हॉलो सर्कल ओनली. अब क्या बोल दिया है आपको? x इज लेस देन -2, मतलब किस तरफ आपकी वैल्यूज जाएंगी? इस तरफ पूरी वैल्यूज, -2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी दैट विल बी द वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट -2. इसलिए यहाँ पे हमने ओपन सर्कल, हॉलो सर्कल बनाया. दिस इज गिवन द सिंबल ऑफ ओपन इंटरवल. कहाँ तक जा रहा है? इट इज एंडलेस ना. जब स्पेसिफिकेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो वी विल बी राइटिंग -∞ दिस साइड एंड दिस इज +∞. Some children used to write, show this infinity using the point. But point is क्या? Point आपको किसी चीज़ का fixed distance देता है. So no need of showing point बेटा, because infinity is not approachable. ध्यान दीजिएगा, infinity is not a point. एक concept है कि जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे. अगर आपने कोई बहुत बड़ा नंबर पे दिखा दिया, उसके में आप +1 करेंगे, +0.1 भी करेंगे, तो you will be getting the next number. So infinity means not approachable. It is just a symbol. तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आपने ला ली, क्योंकि किसी भी इंटरवल को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास दो वैल्यूज चाहिए ना. So this is a symbol that we will be using. तो x की वैल्यू क्या दिख रही है? Which is less than -2. तो our solution will be x belongs to क्या हो जाएगा? अगर x is a real number बोला है तो यहाँ पे क्या लिमिटेशंस आ गई हमारे पास x के लिए? अब देखिए बेटा, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में ध्यान दीजिए क्या होता है. क्लोज्ड मतलब इंक्लूडेड है ना, एंड ओपन मतलब एक्सक्लूडिंग दैट वैल्यू जहां से ओपन इंटरवल स्पेसिफाई हो रहा है. यहां पे आपके पास ओपन इंटरवल है बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग -2. उससे छोटी सारी वैल्यूज हमें लेनी है, रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और वॉट एवर. तो हमें -2 को एक्सक्लूड करना है, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक द स्मॉलर वैल्यूज देन दैट ऑफ इट, बट उसे टच नहीं कर सकते. सो इसी तरह से क्या आप इन्फिनिटी टच कर सकते हैं? एज आई टोल्ड यू, इन्फिनिटी इज अ कंसेप्ट, इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू. आपको मालूम नहीं कि इन्फिनिटी क्या है, आप एक पैटर्न बताने के लिए उसका नाम लिखते हैं. सो सिंस इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट अप्रोचेबल, तो नो मैटर which sign we are having in the question, greater than, equal to
or less than equal to, only greater than or only less than, or infinity will always be in open interval because it is actually not approachable. तो जब हमें आंसर लिखना है तो द स्मॉलर टर्म विल बी रिटन, जब भी इंटरवल्स शो करते हैं हम लोग स्मॉलर नंबर लाइन का पैटर्न फॉलो करते हैं जहाँ छोटे नंबर्स पहले आते हैं और बिगर नंबर्स वी यूज्ड टू राइट फर्स्ट. So here x belongs to open interval minus infinity to minus 2 is also open. This will be your solution. Okay. So हमेशा क्वेश्चन जब आपको दिया है आप ध्यान दीजिएगा उसमें किस तरह से आंसर पूछा है. If they are asking for real numbers तो you can plot number line and you can show the answer in intervals. But for natural numbers, whole numbers also you can get integers, up to integers you have to. अगर rational number बोल दिया तो भी हमारे पास बहुत सारे rational numbers होते हैं 2 and 3 के बीच में. We can get infinite rational numbers. Specified नहीं है ना, तो आप कैसे करेंगे उसको. उस समय आपने rational number के लिए भी आप इस तरह का नंबर लाइन बना सकते हैं. ओके बट उसमें इरेशनल इंक्लूडेड नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा. तो इसलिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो या तो रियल नंबर से रिलेटेड, नेचुरल, इंटीजर और होल नंबर्स. ओके सो वेन एवर यू विल बी शोइंग द नेचुरल नंबर्स इट शुड बी शोन इन सेट एंड फॉर रियल नंबर्स यू विल बी प्लॉटिंग द इंटरवल्स. इतना बस याद रखिएगा. एंड अदरवाइज बाकी पूरा कैलकुलेशन जैसे आप लीनियर इक्वेशंस में करते थे वैसा ही है. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी तरह का थोड़ा सा हायर ऑर्डर जो ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग. वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन एज -3x + 7 is less than or equal to 0. This is our question. Okay. तो यहाँ पे भी आप एक नई चीज़ सीखेंगे थोड़ा सा. If you want, you can take इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. What are the methods? अगर मैं चाहूँ तो मैं 3x को उस तरफ ले जाऊँ और I can add 3x in both the sides. I'll be getting 7 is less than equal to 3x. इस तरह से 3x is greater than equal to 7 मिल गया. And you are getting x is greater than equal to 7. Now we will be writing for all x belongs to R. यहाँ पे for x belongs to R we are using this condition. अब जितने भी questions हम solve करेंगे अब वहाँ पे real numbers के लिए ही हम solve कर रहे हैं. Now we are following this condition for x belongs to R. Okay. तो यहाँ पे एक तरीका ये हो गया कि x is greater than equal to 7 हमें मिल गया. वन मोर कंडीशन इन केस जो जनरली एक थोड़ा सा मिस्टेक होता है जिस पैटर्न में, इसलिए वो दिखाना आपको ज़रूरी है. द सेकेंड पोर्शन इज, सेकेंड पैटर्न इज, अगर आपने -3 को यहाँ रहने दिया, ओके जस्ट सी केयरफुली. यहाँ पे देखिए अगर आपके पास -3 + 7 इज इक्वल टू 0 होता आप इसे कैसे लिखते थे. अभी चलिए इसी को लेके चलते हैं. -3x इज लेस देन इक्वल टू -7. आपने क्या करना है, 7 यू हैव टू रिमूव. तो 7 रिमूव करने के लिए आपको 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन बोथ द साइड्स. सो यू हैव डन इट एंड यू हैव गॉट दिस वैल्यू. ठीक है. नाउ सी चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अभी तक आपने क्या सीखा था पिछले वाले क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में भी जब आपने एडजस्ट किया था. वी हैव डिवाइडेड x by 3 ना, 3x by 3. तो x3 यहाँ से हट गया, ओनली x इज लेफ्ट एंड 7 by 3 वी आर गेटिंग. बट क्या ये यहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है? अगर आपने -3 से डिवाइड किया तो क्या होगा? आर यू गेटिंग द सेम आंसर? देखिए अगर आपने सिंपली बिना कुछ सोचे इन द सेंस अगर आपने सिंपल वो पिछले पैटर्न्स ही यूज़ कर लिए आपने -3 से डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग x इज लेस देन इक्वल टू 7 by 3. तो दोनों आंसर रॉन्ग है, दोनों आंसर सेम नहीं है. इजंट इट? क्यों, कहाँ गलती हो रही है हमारी? सो लेट अस सी वन एक्सप्रेशन, टेक इट सीरियसली, ध्यान दीजिए. व्हाट इज द रिलेशनशिप इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स इन बिटवीन 1 and 2? 1 and 2 में कैसा रिलेशन होता है? बिगर, स्मॉलर एंड सो ऑन. सो यू आर अवेयर ऑफ कि 1 इज स्मॉलर देन 2, है ना. बट वॉट अबाउट अगर मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, इफ आई हैव मल्टीप्लाइड माइनस तो क्या मिलेगा? -1 इज लेस देन -2 होता है क्या?
टेल मी, इज दिस सिंबल करेक्ट? आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आता है, तो क्या होता है बताइए ज़रा, इज इट करेक्ट? नो ना. सो -2 इज ऑलवेज लेस देन 1, वी आर अवेयर ऑफ. तो एज वी चेंज द साइन, अब जब हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो इन बिटवीन जो साइन है, जो सिंबल है इनइक्वालिटी का, वो भी चेंज हो जाएगा. किस तरह से? आई विल राइट -1 ग्रेटर देन -2. तो इस वजह से अगर हमने डिवाइड डायरेक्टली किया तो हमारा आंसर क्यों रॉन्ग आया? क्योंकि हमने डायरेक्ट कंडीशन यूज़ कर ली, ये कंसेप्ट सोचा ही नहीं. ओके, सो रिमाइंड दिस थिंग कि वेन एवर यू आर चेंजिंग द साइन, अब हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें साइन किसका चेंज करना है? वेरिएबल का, कांस्टेंट कुछ भी हो. इट कैन बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, इट कैन बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अगर x वाले टर्म में आपके पास नेगेटिव साइन है तो वाइल सॉल्विंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स. सो जब मैंने यहाँ पे -3 से डिवाइड किया, आई एम चेंजिंग इट्स साइन ना, और आई एम मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन, द साइन इन बिटवीन विल ऑल्सो चेंज. तो आई एम गेटिंग 3x is greater than or equal to 7, and in that manner x is greater than or equal to 7/3. तो आपको समझ में आ गई होगी बात. So you can solve the question like that कि आप 3x को उस तरफ ले जाएं, और you can, if you are leaving 3x in left hand side, तो you have to change the sign if it is containing negative sign. So इस तरह से आपके पास वैल्यू मिल गई. Here we have taken x belongs to r, तो हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मिल गया. तो हम नंबर लाइन पे उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द ग्राफ और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इज, अब यहाँ इक्वल का साइन है तो वी विल बी गेटिंग द डार्क सर्कल ओवर देयर, एंड 7/3 हम शो कर देंगे, एंड x इज ग्रेटर, तो यहाँ लिमिट्स दिखानी पड़ेंगी हमें. ओके, x इज ग्रेटर देन 7/3, तो मतलब जितनी भी 7/3 से बड़ी वैल्यूज है वो होल्ड करेगा x आपका. तो यहाँ पे आपके पास x आएगा. एंड अगेन द सोल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा सोल्यूशन उसका? x belongs to, since it is including this equal का साइन है inequality में, तो we will be writing closed 7/3 to infinity, but infinity is not approachable, so it is containing open interval. Okay. सो इन दिस मैनर आपने जो पैटर्न पढ़ा था क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये इसका एग्जाम्पल है. ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन उसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं, करिए और इस चीज़ को एक बार समझ लीजिए. देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, नाउ रिमाइंड, सब कुछ हम x बिलोंग्स टू r के लिए अब सॉल्व कर रहे हैं. We are having the next question as 2x minus 3/4 plus 9 is greater than or equal to 3 plus 4x/3. बच्चों इसमें जो प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन की बस, बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, सबका पैटर्न एक जैसा है जनरली, बट कैलकुलेशन प्रॉब्लम जहाँ आपने सिम्बॉल्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ करी, you will lose your marks. So how to solve it? यहाँ भी जैसे आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है, आपको ढंग से उसका LCM लेना है, सॉल्व करना है. तो let us do here, remind this is x belongs to r. Okay, so LCM ले लिया, हमें क्या मिला? 2x minus 3 plus 36 upon 4. Okay, greater than equal to 9 plus 4x upon 3. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, then we will cross, constants can be cross multiplied. मतलब हमने 3 को डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, इन ऑल 12 से मल्टीप्लाई किया. वी कैन गेट दैट वी आर हैविंग 2x plus 33/4 is greater than or equal to 9 plus 4x upon 3. Okay, so on multiplying इन दोनों का LCM ले लिया, 12 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया. So 12 and 4 will get cancelled and I am left with 3. 3 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करिए, या इन शॉर्ट जब आपको उसको प्रेजेंट करना है तो आप उस तरह से लिखें, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट ध्यान दीजिए. सो व्हाट शैल वी गेट? वी आर गेटिंग 6x plus 99 is greater than or equal to 36 plus 16x. Okay.
सो व्हाट शुड बी डू, मैं 6x को या तो इस तरफ ले जाऊँ या नहीं तो 16x इस तरफ ले आऊँ। तो एक बार 16x से इस तरफ लाते हैं, लेट अस गो फॉर द माइनस साइन, तो और क्लियर होगा आपके लिए। तो आई एम राइटिंग 6x माइनस 16x is greater than equal to 36 minus 99. ओके, सॉल्व किया आपने तो आपको क्या मिला, दिस इज माइनस 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या मिल रहा है बताइए जरा यहाँ पे, -63, इतना मिल गया। चेक करते जाइए आंसर करेक्ट है कि नहीं। नाउ वी हैव टू रिमूव द साइन, तो क्या करना पड़ेगा, 10x इज लेस देन और इक्वल टू 63, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको हर स्टेप में। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 63/10 और आई कैन राइट इट एज 6.3, इसे 63/10 भी लिख के छोड़ा जा सकता है। So for the solution we will be plotting number line में क्या आना है, x is less than equal to है तो you will be getting the dark circle 6.3 or 63/10, anything you can write, okay, and here minus infinity to plus infinity. So what about the answer, which portion will be the answer, देखो x is less than is given to you, less than or equal to, तो लेस देन मतलब हमें इस तरफ लेके चलना है वैल्यूज को, दिस इज x एंड आवर आंसर इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, अगेन एज माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी नंबर, एंड 63/10 बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वी आर गेटिंग क्लोज्ड इंटरवल हियर बिकॉज इक्वल साइन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अब ये इक्वल का मतलब और ऑप्शन होता है, द वैल्यू विल बी आइदर दैट और दैट, ठीक है। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। अब हमारे पास इस टाइप का फॉर्म आ जाए, देखिए जरा, द फॉर्म आई एम गेटिंग एज ax plus by upon ax plus b upon cx plus d is greater than equal to, less than equal to, greater than or less than a constant term, that constant can be 0 as well. So I'll be right how to solve this type of questions. एक simple question पहले लेके चलते हैं फिर और, let's go for the question. First one, if I'm having as 1 upon x minus 2 is greater than 0 is written over there, ठीक है। Now what is the meaning of greater than 0? The meaning of greater than 0 is the term will be, किस टाइप की क्वांटिटी आ जाएगी वो, it should be a positive value, तो ये आपकी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए है। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में आपके पास 1 फिक्स्ड है, 1 इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगा बताइए ज़रा, द फ्रैक्शन विल बी पॉजिटिव ओनली इफ द डिनोमिनेटर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके। याद रखिए किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर शुडंट बी 0, ओके। सो वी आर गेटिंग x minus 2, वी शुड गेट x minus 2 greater than 0, ओके, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन मिल जा रही है x minus 2 इज ग्रेटर दैन 0, डिनोमिनेटर को कभी भी इक्वल टू 0 मत लिखिएगा, वॉट एवर साइन इज मेंशन ओवर देयर। अगर मैं इस क्वेश्चन को इक्वल से भी चलूँ तो भी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए। सो आई एम गेटिंग द कंडीशन एज x बिलोंग्स टू 2, आप नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करें इसका, वी आर गेटिंग द आंसर एज x इज ग्रेटर देन 2 है तो ओपन hollow circle will be there, minus infinity plus infinity, the portion is this, here in this portion x is belonging, then the solution is x belongs to open interval 2 to infinity, both are including open sign, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द सिंपल पैटर्न कि आपके पास एक ही डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करते, जब भी वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते, दैट कैन बी डन विद कॉन्स्टेंट्स ओनली। नाउ द नेक्स्ट,
2x minus 3 upon 3x minus 7 is greater than 0. ये कंडीशन आपके पास आ गई. If you are having this condition, अब यहाँ पे देखिएगा उस समय आपके पास न्यूमरेटर वॉज अ कॉन्स्टेंट टर्म, डिनोमिनेटर में वेरिएबल था, आपने एडजस्ट कर लिया. अब इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो इसको एक एजम्पशन से एक कंसेप्ट लेके बस सॉल्व किया जाता है. यहाँ पे आप लेके चलते हैं, अगर आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली ज़ीरो पुट किया तो व्हाट शैल यू गेट? एक्चुअली डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता, बट एक केस, एक कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं जहाँ ओपन इंटरवल हम शो कर देंगे इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग. ओके, इन केस आई हैव टेकन 2x minus 3 is equal to 0 and 3x minus 7 0. ओके, इट कैन बी अ ग्रेटर देन और लेसर देन वैल्यू. हमें अभी मालूम नहीं क्योंकि क्या सिंबल में क्या कंसेप्ट है अभी मालूम नहीं हमें किस तरह से सॉल्व करना है. सो आई एम टेकिंग इन जनरल और इस तरह से x की वैल्यूज़ निकाल दे रही हूँ. ये जस्ट दिमाग में रखना है, दिस इज नो नीड ऑफ शोइंग दिस. जब मैंने इसको ज़ीरो पुट किया तो व्हाट एम आई गेटिंग? x की वैल्यूज़ मुझे क्या क्या मिल पा रही हैं? आई एम गेटिंग 2/3 एंड दिस वन एज 7/3. दिस आई विल टेक 3/2 and 7/3. This I'll write as critical points. क्योंकि कहीं से आंसर देने में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट, जो x की जो वैल्यूज आई इस एक्सप्रेशन से मुझे उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. So I'll be plotting the terms on number line as this is minus infinity, this is plus infinity, and which one is smaller, 3/2 or 7/3? Obviously 3/2 is smaller, 1.5 है. 3/2, 7/3, this term is containing greater sign, no? तो न्यूमरेटर भी ओपन सर्कल x की वैल्यू यहाँ पे, जब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा तो न्यूमरेटर विल बी कंटेनिंग द क्लोज्ड वैल्यू, बट डिनोमिनेटर ऑलवेज बी, क्योंकि हमें मालूम है ना किसी भी रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा वो. सो वी विल बी गेटिंग और रियल फंक्शन वी कैन से. तो यहाँ पे मैंने 3/2 शो कर दिया, दिस आई एम शोइंग एज 7/3. And since I am having greater sign here, I'll be writing open circles. I'll be drawing open circles over that point for that points. मतलब they are not included in it. Denominator में obviously आपको मालूम है, अगर मैंने ये वैल्यू 7/3 के इक्वल x को 7/3 पुट कर दिया तो I'll get 0 which will not be defined. ये बस आपके एक कन्वीनियंस के लिए है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए पैटर्न को. So what shall we get? Just see this thing. अब मेरे पास ये 3 इंटरवल्स मुझे मिल गए. आई हैव गॉट 3 इंटरवल्स. ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है? फॉर सॉल्विंग दिस थिंग व्हाट टू डू? आई विल बी टेकिंग अ नंबर विच इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ जो इंटरवल है आपके पास 3 इंटरवल्स आर देयर. द फर्स्ट इंटरवल इज minus infinity to 3, second is 3/2 to 7/3. The first interval is minus infinity to 3/2, then 3/2 to 7/3 and 7/3 to what? Infinity, है ना? तो अब आपको यहाँ पे कोई एक वैल्यू अपने मन से अज्यूम करनी है. हम ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू यूज़ करें वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, जो हमें कंडीशन चाहिए है उससे रिलेटेड टर्म्स हमें मिल जाएंगे फॉर एनी वैल्यू. सो देखिए आप, ये दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, तो इजीली अप्रोचेबल टर्म क्या है? 0 है. तो इफ आई पुट इन रफ वर्क फॉर अवर सेक, वी आर राइटिंग एक्स इज 0. इन दोनों के बीच का माइनस इन्फिनिटी और प्लस माइनस 3/2 के बीच का कोई भी एक नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, इट्स ऑन यू, बट हम कोशिश करते हैं हमारा कैलकुलेशन ईजी जाए. सो आई हैव टेकन x is equal to 0 here for this interval. I am checking the sign of the expression for this interval. तो मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिल रहा है? दिस टर्म 2x will be 0, 3x is also, this term will give you 0, minus 3 by minus 7 is which type of quantity? We have to take care of sign only. So this minus 3 by minus 7 will be a positive quantity which will become 3/7. Okay. Then the next value 3/2 and 7/3, this is 1.5 and 2 point something we are getting. तो 2 ले लिया हमने इनके बीच की एक वैल्यू को, 2 पुट किया, वी आर गेटिंग 4. ठीक है, 4 minus 3 is +1
एंड 6 - 7 इज -1, तो हमें मिल रहा है 1 upon -1. This is a negative quantity. I'll be putting negative sign over there. ओके, सिमिलरली व्हेन यू विल चेक, एक कंसेप्ट होता है इन फ्रैक्शंस का कि जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं आपको एक इंटरवल मिल गया पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव एंड थर्ड विल ऑब्वियसली बी पॉजिटिव. इस तरह का एक कंसेप्ट आता है. अगर आप ट्राई करके देखना चाहें यू कैन चेक इट. हमने 7/3 एंड इन्फिनिटी के बीच में 3 ले लिया. अगर आई ऑलवेज गेट द पॉजिटिव साइन 3, 4 एनी नंबर यू कैन टेक. सो इन दिस मैनर आई हैव गॉट दीज सिम्बॉल्स. मतलब इस इंटरवल में इस फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. इन दिस सेकेंड इंटरवल इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड इन थर्ड इंटरवल द वैल्यू विल अगेन बी पॉजिटिव. तो हमें सोल्यूशन चाहिए ना इस चीज़ का. एक्स की वैल्यूज़ ढूंढनी है. ये सारी एक्स की वैल्यूज़ है जिनके लिए हमें इस तरह से एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी आपके पास में. सो अब देखिए ये आंसर क्या है आपका. दिस इज ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो यहाँ कौन कौन से इंटरवल्स में आपके पास वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है. सो आई एम फाइंडिंग ओपन इंटरवल्स -22, 3/2 अगेन एन ओपन इंटरवल एंड 7/3 to infinity an open interval again is in that intervals this x is satisfying this condition. I am getting the positive answer. Greater than 0 means positive होता है ना. So I'll write x belongs to, जब इस एक्सप्रेशन को एक साथ शो किया जाता है तो we used to write as we have learnt in sets. We will be writing it as union this interval. Union this मतलब पूरे का collection आपने लिख दिया. So this is your answer. This is your solution set. And this is number line representation. तो हमें समझ में आ गया पॉजिटिव आ रहा है तो we can darken it. उसे हाईलाइट कर दीजिए कि this is the in this interval we are getting our answer. Especially हाईलाइट करना मस्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए. ओके, so this is your question. Let's go for the next one. The next question is we are having 5x plus 8 upon 4 minus x, ठीक है, is less than or equal to 2. Okay, let's go for solving it. सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरह से. पर बेटा इसमें एक बार ध्यान रखना है, आपके पिछले क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटर देन 0 वॉज एक्सप्रेशन. तो यहाँ भी हर एक क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन वाले आप टर्म्स को सॉल्व करते हैं देयर यू हैव टू कीप द RHS एज 0. तो किस तरह से ले जाएं. अगर हम 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो फिर हमें 0 नहीं मिलता. तो वी विल बी सबट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स. So what shall we get? This is 5x plus 8 upon 4 minus x minus 2 is less than equal to 0. अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है देखिएगा. 5x plus 8 minus 8 plus 2x, again take care of sign while solving the terms, upon 4 minus x is less than 0, and this is giving us 7x upon, okay, 8 is getting cancelled, 7x upon 4 minus x is less than 0. 7 is a constant term. If we will be dividing both the sides by 7, we will get the answer as x upon 4 minus x less than 0. And in this type of expression, it is better to keep x as positive. x को with positive sign रखना ज़्यादा अच्छा है. तो I am taking out minus sign common. So मेरा expression क्या बन जाएगा, मैंने minus sign common निकालना है. x minus x upon x minus 4 I will be getting less than 0. अब जब इस minus sign को मैं हटाऊंगी तो what shall I get, x upon x minus 4 greater than 0. Okay, have you got this thing? So अब ये हमारे पास एक expression आ गया. This expression also can be solved as the previous one. बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करिए. हमने x की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपने कन्वीनियंस के लिए 0 पुट किया. दिस इज अ शॉर्टकट मैथड पैटर्न. यहाँ पे हमको x की वैल्यू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 मिल रहा है केसेस के हिसाब से. These are the critical points. And we will be plotting these points. Again the same condition we are applying.
we will be plotting these condition values on number line, and here equal sign is also there in each expression, no? Equal का sign भी है, ध्यान दीजिएगा. Here 0 शो किया and 4 माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इस क्वेश्चन में एक वैल्यू 0 है इसलिए हमने एक्सप्रेस किया, शो किया, लिखा हमने इस नंबर लाइन पे टू इन्फिनिटी. ओके, सी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, आपको मालूम ही है ये चीज़, नहीं तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा. तो आपने न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू आ रही है एक्स की, जो भी एक्स से रिलेटेड वैल्यू न्यूमरेटर से रिलेटेड है उसको हम इक्वल करेंगे. इट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, तो इट विल बी अ क्लोज्ड सर्कल. तो इस तरह से अब हमें सर्च करना है साइन का, जैसे हमने पिछली बार किया था. तो लेट अस सर्च फॉर, हमारे पास इंटरवल्स कौन कौन से मिल गए. माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक इंटरवल मिला, इसमें साइन चेक करते हैं, इनके बीच का कोई भी एक नंबर. लेट अस टेक इट एज -1 ना. तो -1 हमने यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है, -1 अपॉन -5. दैट ऑल शुड बी द रफ वर्क. -1 अपॉन -5 इज द पॉजिटिव क्वांटिटी. आई एम राइटिंग प्लस साइन हियर. आप चेक कर सकते हैं, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस वन विल बी पॉजिटिव. ओके, सो आपकी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू. क्वेश्चन शुरू हुआ था लेस देन इक्वल से, बट कैलकुलेशन के बाद हमें मिल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होता है, 0 तो यहाँ इंक्लूडेड है ही. ओके, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू, पहले इंटरवल्स लिख लिया जो पॉजिटिव है, हाईलाइट किया उसे आपने x की वैल्यूज के लिए, दैट नंबर लाइन का वो पोर्शन आप हाईलाइट करेंगे. एंड दिस इज गिविंग अस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज क्लोज्ड. ओके, बिकॉज 0 इज इंक्लूडेड. यूनियन जैसे आप जानते हैं 4 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी. So this is your solution for this expression. So one question I am giving you to practice, you can try at home. The question is 2x plus 4 upon x minus 1 is greater than or equal to 5. 2x plus 4 upon x minus 1 is greater than or equal to 5 will give you, you can solve and get the answer. Now I am going towards the next pattern, a very important pattern. That is to solve system of linear inequations or inequalities. What is the meaning of the system? आपने लास्ट ईयर भी लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व किया था. मतलब आपके पास, देखिए आपने लास्ट ईयर किया है जब आपके पास 2x plus 3y is equal to 6 ऐसा कोई इक्वेशन होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने लर्न किया था. इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए एक सिंगल आंसर नहीं मिलता. सिंस इट इज़ अ सिंगल लाइन, कैसे भी ग्राफ में जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें एक सिंगल लाइन मिलती है. दिस टाइप ऑफ लाइन यू विल बी गेटिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, एंड इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इफ़ आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर लाइन. बट जब आप एक पेयर ऑफ लाइंस लेते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, तो जब आप पेयर ऑफ लाइंस लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, समझो आपको, मतलब इन दोनों का आप उसको वर्ड यूज करते थे सिस्टम, सॉल्व दिस सिस्टम. सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं इसमें उसका कॉमन आंसर आप ढूंढते हैं. इन केस आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, आपने पढ़ा है, यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नंबर लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, एक सिंगल पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट ओनली और एट इनफाइनाइट कोइंसाइड होती हैं, इजंट इट. जब सिंगल पॉइंट पे होता था तो आप यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे, जब पैरेलल लाइंस थी नो सॉल्यूशन, है ना. और
जब आप डिफरेंट मेथड्स उसको सॉल्व करते थे, यूनिक सोल्यूशन के लिए आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। सो वही काम, सिस्टम मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ वन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में सिस्टम का भी वैसे ही मतलब होता है, इंस्टेड ऑफ वन इनइक्वालिटी यू विल गेट मोर देन वन इनइक्वालिटीज, जनरली टू। अब उन्हें आपको सॉल्व करना है, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर द सोल्यूशन। क्या होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, सिस्टम का सोल्यूशन मतलब एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू तो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो वी हैव टू सर्च फॉर द कॉमन पोर्शन, कॉमन रीजन, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व द इनइक्वालिटी। यू आर हैविंग द फर्स्ट इनइक्वालिटी, पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज, यू आर गेटिंग द पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज, यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम। You are having 5x minus 1 is less than 24. Second inequality is 5x plus 1 is greater than minus 24. अब जैसे आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करी वैसे ही सॉल्व करते जाइए इसे। ऑन सॉल्विंग व्हाट शैल वी गेट, हम इस तरफ लेके आए, आई एम गेटिंग 5x is less than 25 और we can say we have added 1 on both the sides. यहाँ पे we are getting 5x is greater than minus 25 on subtracting 1 on both the sides. On again solving 5 से divide किया तो we are getting x is less than 5, here x is greater than minus 5. अब दो अलग अलग इनइक्वालिटीज सॉल्व करी हमने, x की डिफरेंट वैल्यूज लाई, बट सिंस इट इज़ अ सिस्टम तो हमें कॉमन आंसर ढूंढना है, तो वी विल बी प्लॉटिंग द सेम ग्राफ, बोथ द इनइक्वालिटीज वी विल बी प्लॉटिंग ऑन द सेम ग्राफ। तो देखिए ज़रा ग्राफ और नंबर लाइन, अगेन हर बार हमें इनफाइनाइट शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन नॉट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडिंग है वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ एक्स आर एक्सक्लूडिंग 5 और -5, तो वी विल बी राइटिंग द ओपन इंटरवल्स, ओपन सर्कल्स, दिस इज -5, दिस इज 5। अब देखिए x इज लेस देन 5 इज गिवन टू यू, x लेस देन 5 मतलब जहाँ तक भी जा सकता है उसको, तो हम उसको पूरा देखना है, नॉट इंक्लूडिंग दैट, बट वहाँ से लेके x लेस देन 5 वी आर गेटिंग लाइक दैट, दिस इज x लेस देन 5, दिस पोर्शन इज कवरिंग x लेस देन 5। व्हाट अबाउट x इज ग्रेटर देन 5, x -5, x is greater than -5 is showing this condition. Okay, since we are solving the system we have to take the common portion as answer. देखिए अब अगर आप x greater than 5 -5 में जा रहे हैं तो यहाँ तक less than 5 की भी वैल्यू आ रही है, बट उसके आगे तो नहीं आ रही। कॉमन पोर्शन क्या है, दोनों ही जगह, दोनों ही इनइक्वालिटीज में जो पोर्शन कवर किया है, दैट इज व्हाट, दिस इंटरवल। तो सॉल्यूशन इज, solution set we can take, solution interval is x belongs to open interval minus infinity -5 to 5. This is your answer, the common portion. Okay, let's go for the next question of this kind. ऐसी बहुत सारी varieties, अब terms को सारे को adjust करके you can get your answers. You are having the next condition as, next question as 2x minus 3, this is question number 2, upon 4 plus 6 is greater than equal to 2 plus 4x by 3. Okay, this is the first inequality. The next one is, चलिए next लिखने से पहले इसे solve कर लें, और I am writing it here. The next inequality is 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6 into x minus 2. This I am getting. Okay, तो how to solve it? अब इसको जैसे आप सिंपली सॉल्व करते आए हैं, सिंगल इनइक्वालिटी को वैसे ही इसे सॉल्व करना है आपको। देखिए ज़रा क्या मिलता है, लेट अस डू इट। 2x minus 3 plus 24 upon 4 is greater than equal to 6 plus 4x upon 3. The next step is 2x plus 21 upon 4 is greater than equal to 6 plus 4x upon 3. ऐसे सॉल्व करते जाइए और बताइए मुझे ज़रा क्या मिलेगा। 6x plus on multiplying 12 on both the sides, 6x plus 63 is greater than or equal to 24 plus 16x. So जब मैं 16x को इस तरफ लाती हूँ, -10x is
ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 मैंने इस तरफ ले लिया, -39। ओके, सो बाय सॉल्विंग कितनी भी जल्दी करें आप, जहाँ माइनस साइन आया आपको फटाक से याद आना चाहिए कि वी हैव टू चेंज द साइन। ऑन रिमूविंग द साइन आई एम गेटिंग 10x लेस देन और इक्वल टू 39 और x is less than or equal to 3.9 or 39 by 10 you can write. Now let's solve the next one. This is giving us 4x plus 6 minus 10 less than 6x minus 12. This is 4x minus 4 less than minus 12. Okay, you are taking to this side. This is 4x minus 6x less than minus 12 minus 4 plus 4 and minus 2x is less than minus 8. On solving x is greater than 4. देखिए मैंने पहले साइन चेंज किया and then we have divided. तो इस तरह से आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गए and since it is not a single inequality we are solving a system here. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, we will be drawing the same number line minus infinity to plus infinity and the values will be shown like जो छोटा नंबर है हमने पहले लिख दिया since it is containing equal sign 3.9. This is 4 is not containing equal, it is showing the hollow circle. So this is your value minus infinity to plus infinity. Let us go for solution now. X is less than equal to 3.9. It is mentioning this is this side, ये वाला पोर्शन आपका आ रहा है. So फिलहाल तो हमें कॉमन आंसर निकालना है तो we will be writing एक सिंबल बस दे देते हैं. What about x greater than 4 is given to you, isn't it? x greater than 4 है तो हमारा opposite direction में जाएगा. So are you finding any common region over there? कुछ common portion मिल रहा है आपको यहाँ पे? No. You are not finding any common portion. तो क्या होगा? Since there is no common portion, therefore no solution. तो यहाँ पे मुझे x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिली जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. Now the next question is 2x plus 1 upon 7x minus 1 is greater than 5. Okay, and the second one, फिर से हमें सिस्टम ही सॉल्व करना है. x plus 7 upon x minus 8 is greater than 2. These two expressions I am having and मुझे इसका सिस्टम, ये सिस्टम सॉल्व करना है, मुझे कॉमन आंसर निकालना है. तो हाउ टू डू इट. फिर से हमने जैसे इस टाइप के रेशियोज को सॉल्व किया है, वी विल बी यूजिंग दैट सेम कंडीशन फॉर सॉल्विंग. इसको सॉल्व करना है हमें, तो वी विल बी राइटिंग 2x plus 1 upon 7x minus 1 minus 5 is greater than 0. The next is on taking LCM 2x plus 1 minus 35x plus 5 upon 7x minus 1 greater than 0. Then minus 33x plus 6 upon, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 7x minus 1 greater than 0. As I told you, जनरली x को हम x वाले टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो आई एम टेकिंग आउट माइनस साइन कॉमन, और जब मैं उसे हटाऊंगी तो द सिंबल विल ऑल्सो चेंज. I am getting 33. With it I can take out 3 also common. So I am left with 11x minus 2 upon 7x minus 1. बेटा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाला और उसे हटाया है, तो दिस सिंबल विल चेंज. सो इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे क्या क्या मिल गए. x is equal to 2 by 11 and here 1 by 7. Okay, these are the critical points. इसको लिखना आपको ज़रूरी है क्योंकि एग्जैक्टली तो x 1 by 7 हो नहीं सकता.
नाउ वी विल बी प्लॉटिंग द नंबर लाइन. यहाँ पे हमें अलग से नंबर लाइन एक बार प्लॉट करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी हमको आंसर मिलता है वो पूरा नहीं होता, जो रिक्वायर्ड है वही हमें लेके चलना पड़ता है इंटरवल्स. तो यहाँ पे हम इस केस के लिए हमें आंसर क्या मिल रहा है, विच वन इज ग्रेटर बताइए ज़रा. दिस इज 2/11 is greater obviously, so we will be writing 1/7 and 2/11 here, minus infinity to plus infinity. Okay, and both will be containing the open intervals because यहाँ साइन भी आपका इक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं है. सो लेट अस गो फॉर द साइन. अब देखते हैं ज़रा इनके बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे -0 पुट कर दिया इस इंटरवल में, 0 पुट करने से आपको एक्सप्रेशन का साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, है ना. सो आई विल राइट प्लस साइन ओवर देयर. जब मैंने यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन चेक, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस अगेन. अब इस कंडीशन के हिसाब से क्या मिलेगा बेटा बताइए ज़रा. हियर यू आर गेटिंग x बिलोंग्स टू, सिंस द एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव किस में मिल रहा है, तो यू विल बी गेटिंग ओपन इंटरवल 1/7 and 2/11 as the solution for this condition only. Let's solve this one. I am getting the answer as क्या मिल रहा है देखिए ज़रा, x plus 7 upon x minus 8 minus 2 greater than 0, and solving this we are getting x plus 7 minus 2x plus 16 upon x minus 8 is greater than 0. आगे से सॉल्व किया जाए तो हमें मिलता है -x प्लस कितना हो जाएगा देखिए ज़रा, 23 upon x minus 8 is greater than 0. Again I have taken out minus sign, so I am left with x minus 23 upon x minus 8 is less than 0 children. We have to plot the number line again and we will get the values as 8 and 23 with minus infinity plus infinity. साइन चेक किया हमने, जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो आई एम गेटिंग पॉजिटिव साइन, दिस इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव. ओके, तो अब इस सोल्यूशन को हमें कॉमन सोल्यूशन निकालना है ना, तो अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है ऑन अ सिंगल नंबर लाइन. तो द सॉल्यूशन वी विल गेट फ्रॉम दिस वन. तो हमें जो जो आंसर मिले, यहाँ पे क्या मिला, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 8 to 23, बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी एकदम डेसिमल में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा सबको नंबर लाइन पे. आई एम गेटिंग माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ओके, एंड व्हाट 1/7 पहले शो कर दिया हमने, देन 2/11 इज ऑल्सो स्मॉलर क्वान्टिटी. ओके, देन 8 and 23, एक गैप प्रॉपर नहीं ध्यान देंगे, जस्ट वी विल बी प्लॉटिंग दैट. तो हम मान के चल रहे हैं कि लाइन इज एक्सटेंडेड, बहुत बड़ी लाइन है, बीच में एक्सपेंशन भी हो सकता है. एंड नाउ वी विल बी प्लॉटिंग द कॉमन रीजन, दिस इज योर रीजन. बाकी दोनों से आपको सोल्यूशन कहाँ मिला, ये मिला. सो आर यू गेटिंग एनी कॉमन सोल्यूशन? सिंस देर इज अगेन नो कॉमन सोल्यूशन, पहले आंसर यहाँ तक आ गया, दूसरे का आंसर यहाँ तक आ गया, वी विल बी सेइंग since there is no common region, again we will be writing, so no solution. So इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आपको नो सोल्यूशन ही मिले. आप जैसे आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखा था, कॉमन पोर्शन विल बी द आंसर, सो यू कैन गेट द, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व करें जिसमें आपके पास कॉमन पोर्शन आए. सो रिमाइंड दैट कि आपको कॉमन टर्म्स ही लेके चलने हैं. ओके, so these was some basic patterns for solving linear inequalities. In next class we will be learning about some important results. Okay,